Hello student, welcome back to my YouTube channel Mamta Classes. Today we will start a new topic of class 10. Yes, today we will start a new topic of class 10. Chapter 3 from NCERT, that is pair of linear equation in two variables. Now in your earlier classes, like in 9th class, you have studied linear equation in two variable, that means whose degree is 1 and two type of variable are used in that equation. But in 10 there is another term added, that is pair of. That means in this chapter we are constantly studying about two equations of linear equation in two variable. For example, we have a line, for example, pair of a1x plus a2y plus c1 is equals to 0 and a1 b1, a2x plus b2y plus c2 is equals to 0. You can write it here as like a1x, a2x, b1x, b2x, b2y, but you are quite used to, so that's why I just changed the variable. ठीक है, अब इसको हम बोलते हैं बेटे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन और भी होती है. देखो यहाँ पे अगर मैं इन कोफिशिएंट्स का स्क्वायर कर दूँ और फिर इनका सम कर दूँ, दैट विल बी नेवर इक्वल्स टू 0. ठीक है, ऐसा क्यों? और ये टर्म मैंने जो मेंशन की है, इसका क्या यूज़ है? देखो ये नंबर कुछ भी हो सकता है. कोफिशिएंट जो है इट कैन बी आइदर नेगेटिव, आइदर पॉजिटिव और 0. ठीक है, सिमिलरली दिस ऑल्सो, सिमिलरली दिस वन एंड दिस वन. अगर मैं किसी भी नंबर का स्क्वायर करती हूँ, इट विल कन्वर्ट इन पॉजिटिव एंड सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर विल नेवर बी इक्वल्स टू 0. अब आप कहोगे कि मैम a1 0 हो गया तो b1 को भी 0 आना पड़ेगा, तभी ये 0 होगा. क्या फिर ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रह जाएगी? अगर मैं a1 को भी 0 कर दूँ और b1 को भी 0 करूँ, देन वी विल लेफ्ट ओनली विद c1 इक्वल्स टू 0. तो क्या वो एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? नहीं. एंड कांस्टेंट इज नेवर इक्वल्स टू 0. अगर मैं कांस्टेंट पे, अगर यहाँ पे 0 है, देन इट इज इक्वल्स टू 0. ओके, बट इफ c1 इज 5, is it possible 5 is equals to 0? No, that don't make any kind of sense. Is that clear? अब इसको ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम दो तरीके से सॉल्व करते हैं. एक होता है हमारे पास ग्राफिकल मेथड, another we have algebraic method. Okay, we will deal with that later after doing graphical. Now what is graphical method? How we use this? See, I have already given you a pair of linear equation, a1x plus b1y plus c1 equals to 0, a2x plus b2y plus c2 equals to 0. Now the coefficients of x and y, a1, b1, a2, b2 and constant also plays a very important role. That is, for in graphical, by using these terms a1, b1, a2, b2, c1, c2, we will find that whether the lines are intersecting, पैरेलल और कोइंसिडेंट. ठीक है, नाउ फर्स्ट है, अगर मेरे पास a1 by a2 is not equals to b1 by b2, then the lines are intersecting lines. Then the lines are intersecting line. Second thing, if a1 by a2 is equals to b1 by b2 but not equals to c1 by c2, then the lines are parallel. I'm quite used to short forms. I use sometimes parallel like this, sometimes नहीं, actually most of the time. Right now also I confuse with whether I write this or not. Please mention, like आपको ध्यान रखना है जब भी आप चैनल पे आ रहे हैं. ठीक है, थर्ड है हमारे पास कोइंसिडेंट लाइन. कोइंसिडेंट लाइंस जो है वो हमारे पास कब होती हैं? जब a1 इज इक्वल्स टू a2, b1 इक्वल्स टू b2, c1 इक्वल्स टू c2. दैट मीन एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर, मतलब दूसरी लाइन के ऊपर है. क्लियर? दिस इज द ग्राफिकल मेथड.
अगर a1/a2 is not equals to b1/b2, then it is intersecting line. If these are equal but not equals to the constant, then these are lines parallel. And if these are equal to constant also and the coefficient also, then the lines are coincident. Look, मैंने आपको बोला इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, ग्राफिकल मेथड और अलजेब्रिक। ग्राफिकल से हमें पता लग जाएगा लाइंस कैसी हैं। बेसिकली मुझे डील तो इसी चीज़ के साथ करना है ना कि हाउ इज लाइन, मतलब लाइंस कैसी है, हमारे पास सोल्यूशंस कैसे हैं। अब सोल्यूशंस के लिए हम क्या करेंगे, देखो सोल्यूशन के लिए हमारे पास रेशियोज तो सेम रहेंगी, बस तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। कैसे? सोल्यूशन पे जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज कंसिस्टेंट। डू यू नो व्हाट इज कंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट हमारे पास होता है एट लीस्ट वन सोल्यूशन एग्जिस्ट। अब मैंने ये वर्ड यूज किया है, देखो हम डील किसके साथ कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पेयर की बात हो रही है। दैट मीन मैंने जब आपसे ये कहा कंसिस्टेंट सोल्यूशन, दैट मीन ये एक सोल्यूशन ऐसा मिलना चाहिए जो दोनों पेयर्स को सेटिस्फाई करे। ठीक है, कम से कम एक, ठीक है, कम से कम एक और मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, उस केस में हमारे पास हो जाएगा consistent with infinitely, this is my used to infinitely with infinitely many solutions। और इस केस को हम बोलते हैं, जहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया ना एटलीस्ट वन सोल्यूशन, इसको हम बोलते हैं हैज यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, जैसे हर इंसान अपने आप में यूनिक होता है। Is that clear? Now third is inconsistent। इनकंसिस्टेंट किसे कहते हैं, इनकंसिस्टेंट सिस्टम किसे कहते हैं? जब मेरे पास नो सोल्यूशन, मतलब मेरे पास कोई भी एक्स और वाई का पेयर एग्जिस्ट नहीं कर रहा जो दोनों लाइंस को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, देखो जब मैंने ये कहा ना कि आपसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं then this is called as system of linear equation। ठीक है, बेसिकली एक टाइम पे एक से ज़्यादा के साथ डील करो, then it is known as system of linear equation। I hope this is clear to you theoretically। Now we will proceed with some questions। Before going to do that, अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि कंसिस्टेंट सिस्टम जो है उस पर यूनिक सोल्यूशन होगा, है ना। कंसिस्टेंट विद इनफाइनेटली मैनी, मतलब एक से ज़्यादा सोल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट नो सोल्यूशन। इसको फाइंड कैसे करेंगे? इसको फाइंड करने का जो मैंने आपको बताया था ना, देखो इंटरसेक्टिंग, दैट मीन a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। दैट मीन इन केस ऑफ कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट ले लेते हैं पहले हम। In case of inconsistent, we have a1/a2 is equals to b1/b2 but not equals to c1/c2। ठीक है, in this case we have inconsistent with infinitely solutions, we have a1/a2 is equals to b1/b2 is equals to c1/c2, and in this case obviously first one left, a1/a2 is not equals to b1/b2। Is that clear? I hope आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया, let me know in the comment section। Now we will do some questions, but before going to some questions, let me summarize this। If a1/a2 is not equals to b1/b2, then the lines are intersecting and has unique solution
has unique solution and system is consistent. System is consistent. This is by graphically, this is algebraically, and this is system. We are talking pair of lines. Sorry. Next is when a1 by a2 is equals to b1 by b2 is not equals to c1 by c2, then the lines are parallel graphically. Parallel graphically has no solution. Has no solution, and system is inconsistent. Clear है? The third one is a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2, then the lines are coincident. Coincident has unique solution and system is consistent. अब आप कहोगे कि मैम आपने ऊपर भी वर्ड कंसिस्टेंट यूज़ किया, नीचे भी वर्ड यूज़ कंसिस्टेंट किया, तो इसमें फ़र्क क्या हुआ? तो इसमें हमारे पास फ़र्क क्या हुआ? देखो ये जो था ना, यहाँ पे मेरे पास सोल्यूशन कैसा होता है? यूनिक, मतलब एक ही सोल्यूशन मिलेगा. यहाँ पे नॉट यूनिक सोल्यूशन, नो, हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन. तो यहाँ पे जब इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आ गया आपके पास, तो कंसिस्टेंट कैसा हो जाएगा? विथ इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन. बेसिकली अगर मुझे सोल्यूशंस मिल रहे हैं देन द सिस्टम इज कंसिस्टेंट. अगर नहीं मिल रहे देन इट इज इनकंसिस्टेंट. और अब जो सोल्यूशंस मिल रहे हैं वो अगर एक ही है देन इट इज यूनिक सोल्यूशन. एंड इफ वी आर गेटिंग मोर देन वन देन इट इज सिस्टम कंसिस्टेंट system with infinitely many solution. Is that clear to you? Now let us proceed to the very first question. In boards also this is asked like, आपके पास कोई भी random question है, like I'm just giving a random question. 2x plus 3y is equals to 5 and 3x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 10. आपको बताना है कि ये कैसी लाइन्स है. अगर लाइन्स है तो मैं किसकी बात करूँगी? ग्राफिकली की. ग्राफिकली मतलब a1 बाई a2, b1 बाई b2, दिस टर्म्स. अब पहले तो मैं किसी और चीज़ पे कोई भी कंक्लूजन निकालने से पहले a1 बाई a2, b1 बाई b2 चेक कर लेती हूँ. a1 बाई a2 क्या हो जाएगा? 2 बाई में 3, b1 बाई में b2 इज 3 बाई में 7. देखो हम ना साइंस के साथ लेंगे. आप पे इत्तेफाक से आपके पास सारे पॉजिटिव साइन है. अगर मेरे पास नेगेटिव साइन आता है तो मैं नेगेटिव साइन के अकॉर्डिंग लूँगी, मतलब नेगेटिव साइन भी साथ में लूँगी. c1 बाई c2 विच इज़, अब देखो ये 5 इधर लेके जाएंगे इसको पहले. अच्छा एक बात और, जो कंसिस्टेंट सोल्यूशन होता है ना उसमें हमें इसे जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ता है. यहाँ पे मैंने नहीं किया. 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0. Here 3x plus 7y minus 10 equals to 0. तो c1 by c2 that is minus 5 by में minus 10. देखो मैं इसको लिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती हूँ, that is 1 by 2. अब देखिए a1 by a2 is not equals to b1 by b2 is not equals to c1 by c2. अब ऐसा तो मेरे पास कोई भी केस नहीं है, बट इफ आई नेग्लेक्ट दिस केस वी हैव द रिजल्ट ऑफ दिस केस which is intersecting lines, Is that clear to you? अच्छा अब एक क्वेश्चन और है हमारे पास. सॉरी, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन representing
parallel lines is also known as अगर मेरे पास कोई सिस्टम है लीनियर इक्वेशन, दैट मीन मेरे पास एक पेयर है लीनियर इक्वेशन का और पैरेलल लाइंस फॉर्म हो रही हैं। पैरेलल लाइन के केस में हमारे पास कौन सा सिस्टम होता है? पैरेलल लाइन है, दैट मीन हमारे पास केस क्या बन जाएगा? a1/a2 is equals to b1/b2 but not equals to c1/c2, then the system is inconsistent। और अगर मैं सोल्यूशन की बात करूं, ऐसे केसेस में हैज़ नो सोल्यूशन, ठीक है? इज दैट क्लियर टू यू? नाउ देयर इज वन मोर क्वेश्चन। अब इनका एक तो ऐसी चीज़ों में लाइंस के बारे में, सिस्टम के बारे में यूज़ होता है, एंड एक यूज़ होता है आपको कोई के वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ इक्वेशन 3x minus 4y is equals to 7, sorry, plus 7 is equals to 0. Another we have is kx plus 3y minus 5 is equals to 0, and इन्होंने कहा has no solution, आपको तब k की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर no solution है तो ये तो a1/a2 is equals to b1/b2, चाहे तो आप इन दो को उठाइए चाहे आप इन दो को उठाइए, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। चलो पहले हम करते हैं a1/a2 क्या हो जाएगा मेरे पास 3 में के, b1/b2 क्या हो जाएगा -4 में 3। और अगर मैं ये पेयर उठाऊं पर ये तो इक्वल ही नहीं है, तो यहाँ से क्या ऑब्टेन होगा मुझे कि के की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, बट मुझे तो के की वैल्यू फाइंड करनी है, सो दैट दिस सिस्टम बिकम्स हैज़ नो सोल्यूशन। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये के को उस तरफ लेके जाएंगे, आप सभी को क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है, देन 3 × 3 इज इक्वल्स टू -4k, 9 में -4 इज इक्वल्स टू k, और -9/4 इज द राइट आंसर। I hope this video is, my points are very clear to you. Let me know in the comment section if this video is helpful to you. In next video we will study about the methods of solving system of linear equation, and further we will do like statement sums, how to form equation, and then which method we need to use.